The match between Hong Kong, China and Japan. Requesting both the teams to please line up for the formal introduction. Good evening and welcome back to this live broadcast of this 11th Asian Aquatic Championship 2025. We are watching the men's water polo quarter-final action. This is quarter-final match number 3. This is between Hong Kong, China and Japan. Both the teams would love to go ahead and stake claim for that semi-final berth, with Hong Kong, China going ahead and winning one match and losing 2, while Japan have won 3 matches and they lost against Kazakhstan. So that's the only loss that Japan have suffered. In the white caps, we have Team Hong Kong, China. In cap number 8, we have Sheng He Min. In cap number 1, we have Yan Yan Lens. In cap number 2, we have Sheng Shang Shun. In cap number 3, we have Cheuk Hee. In cap number 4, we have Fong Kong Ching. In cap number 5, we have Yon Xing Yo. In cap number 6, we have NG Anthony. In cap number 7, we have Lau Shen Ho. In cap number 9, we have Ho Dashon. In cap number 10, we have Choi Hin Kit Gilman. In cap number 11, we have Zhang Hin. In cap number 13, we have Shan Lut In. In cap number 14, we have Lee Won Matthew. In cap number 15, we have Shan Leon Medwin. The head coach of the team is Rustamov Krill. And the assistant coach is Ku Yatwa. In the blue cap, we have Team Japan. In cap number 2, we have Ura Enishi. In cap number 1, we have Takashi Hikaru. In cap number 3, we have Lore Zun. In cap number 4, we have Sharma Yu. In cap number 5, we have Mada Toshiyuki. In cap number 6, we have Sakamaki Naru. In cap number 7, we have Joe Hirato. In cap number 8, we have Takeda Royata. In cap number 9, we have Moriya Yuki. In cap number 10, we have Yamamoto Ryotara. In cap number 11, we have Maeda Atsuwa. In cap number 12, we have Matsuno Raisuke. The head coach of the team is Yoshinori Shiata. And the assistant coach are Miyatsuki Sega and Toshikazu Takashaki. The referee of the match is Shalinshenko Victor and Alpesh Patel. The video assistant referee is Sadikov Akbar. The TWPC delegate for this match is Kui Zhao. May I request everyone, if you are able, to please rise up for the national anthem of Hong Kong, China.
followed by the national anthem of Japan. And there the team introductions and the national anthems, the captains exchanging those team sheets, and then high fives all around among both the teams. They shake hands, that mutual respect that they have for each other and the game as well. They go out to the dugout, the space that has been allocated to them on the side of the pool, and from there they will start the proceedings of this match. So there it is, we are all set for Hong Kong versus Japan. This is the third men's quarterfinals water polo match. This is coming to you live from the Veer Savarkar Sports Complex, and there is that lineup, the Hong Kong China's lineup, with the Heyman being the captain. He scored 8 goals in the tournament, with Yan Ias and Lutian in goal, with Kirill Rustamov being their head coach. And on the other hand, we have the Japanese lineup here on our screens. Enishi Ura, the captain, 16 goals he's got. We've got Hikaru Takahashi in goal. We've got John Lowry with 15 goals, Yuki Moriya with 15 goals, and their head coach Shiota Yoshinori, who will be helming the team from the sidelines. We're all set for the commencement of this wonderful quarter-final. That is the Japanese coach out there giving out those last-minute instructions to their team, talking about the strategies, talking about the plans, about plan A, plan B, plan C, and everything out there. That is Shiota Yoshinori, the head coach of Japan. And I'm Harikishore Maladi in the commentary box in English, and joining me is Akshay Maurya in Hindi as we watch the Hong Kong China in a huddle with their coach Kirill Rustamov. धन्यवाद किशोर। क्वार्टर फाइनल नंबर 3 जहां तक मेंस वाटर पोलो के मुकाबलों का सवाल है, एक बेहद अहम दिन, 10वां दिन है ये इस 11वीं एशिया एक्वेटिक चैंपियनशिप का, और वाटर पोलो पर पूरी तरह से केंद्रित है पिछले 5 दिन। और आज यहां पे क्वार्टर फाइनल्स मुकाबले शुरू हुए थे। मॉर्निंग के सत्र में जब हमने विमेंस के मुकाबले शुरू किए थे, उनमें सेमीफाइनल की छवि साफ हो चुकी है। किरिल रुस्तमोव हांगकांग चाइना के कोच, कल एक बेहतरीन मुकाबला हांगकांग चाइना ने उज़्बेकिस्तान से जीता, 22 गोल्स के मुकाबले 17, और वो भी तब जब पहला क्वार्टर 4-4 पर रहा लो स्कोरिंग, और दूसरा क्वार्टर 8-9 से केवल 1 अंक बटोरकर। बेहद दिलचस्प मुकाबला था कल शाम का, आखिरी मुकाबला था वो उज़्बेकिस्तान के विरुद्ध, जब हांगकांग चाइना ने उस जीत के साथ अपना खाता खोला था। अब तक 2 हार और 1 जीत, केवल 1 जीत के साथ। वेराज जापान जो है वो अपने पूल की टॉपर है। जापान पूल ए में सबसे ऊपर रहा है, और यहाँ पे इस तीसरे क्वार्टर फाइनल में हांगकांग को परास्त करके आगे बढ़ना चाहेगा। अब तक 2 सेमीफाइनलिस्ट ईरान और चाइना, उनकी छवि साथ हो चुकी है, जिन्होंने थाईलैंड और सिंगापुर को रिस्पेक्टिवली पराजित किया। अल्पेश भाई पटेल और विक्टर सलेनीचेंको इस मैच के 2 रेफरी रहेंगे, और एक और दिलचस्प और रोचक मुकाबला क्वार्टर फाइनल में। हर बीते क्वार्टर फाइनल के साथ रोमांच बढ़ता जा रहा है।
विक्टर कजाकिस्तान से ये आते हैं, विस्टल के साथ इंतजार। दोनों टीम्स को हाथ हटाकर इशारा किया कि गोल लाइन पर अपनी अपनी पोजीशन ले ले। और इस विस्टल के साथ इस तीसरे क्वार्टर फाइनल का आगाज होने वाला है। पहला क्वार्टर, ओपनिंग क्वार्टर इस तीसरे क्वार्टर फाइनल का हांगकांग बनाम जापान, इस विस्टल के साथ आगाज होगा। और ये दौड़ लगाई है सफेद कैप में, यहाँ पर हांगकांग चाइना की टीम है, लेफ्ट टू राइट आक्रमण कर रही है और राइट टू लेफ्ट नीली कैप में जापान। और पहला स्विम स्प्रिंट गया है यहाँ हांगकांग चाइना के नाम। कल के विजयी मैच के बाद उनका मनोबल नेचुरली काफ़ी सकारात्मक होगा। और हमने हर क्वार्टर फाइनल में देखा है कि जब वो एक पिछड़ी हुई टीम, एक श्रेष्ठ टीम के साथ क्वार्टर फाइनल खेल रही है तो पुरजोर ताकत लगा रही है और पूरी ताकत के साथ घूमकर वहां पे आक्रमण करना चाहते थे हांगकांग चाइना की टीम। एक अच्छा स्नैच वहां पे, तारीफ करनी होगी जापान की भी, आक्रमण को नलीफाई भी किया और काउंटर अटैक बनाने में भी कामयाब। एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्विम यहाँ राइट फ्लैंक से। Japan have played 4 matches in their group. They've won 3 matches, they've lost 1. On the other hand, Hong Kong, they've only had 1 victory in their group. They've lost 2 matches. But this is a new day, a new evening, a new setup. And this is the quarterfinals. So a win will take them closer to a medal place, while a loss will send the teams playing for the classification places, and neither team would want to get there. But Japan, according to me, hold the aces for today. That's an attempt on goal, which hasn't been scored out there. And looking at Japan, the captain Inishiura scored 11 field goals and 5 penalty goals with a total of 16 goals. He's one to watch out for. Lowry Jun scored 12 field goals, 3 penalties, 15 goals to his name. Yuki Moriya, 15 goals to his name, 15 field goals to his name. And we've got Atsuya Maeda, Ryosuke, who've scored 9 goals apiece. For the Hong Kong China, we've got the captain Heyman, 7 field goals and 1 penalty. It makes it 8 goals. He's the top scorer there. And it is Japan who hold the aces. They bet Singapore, they bet India, they lost to Kazakhstan, and then they bet Thailand out there in the group stage matches. हांगकांग चाइना का एक अच्छा प्रयास यहाँ पे, लेकिन गोल के ऊपर गई, लेकिन यहाँ पे गोल के ऊपर नहीं जाएगी। खाता खुलेगा जापान की तरफ से। कप्तान इनिशिउरा ने, जिन्होंने अब तक 16 गोल दागे हैं, उन्होंने ही यहाँ पे खाता खोला है। इनिशिउरा लेफ्ट फ्लैंक से एक राइट हैंडर, स्ट्रॉन्ग राइट हैंडर। 2 डिफेंडर पीछे से हिचक भी रहे थे, हेजिटेशन थी, जाहिर है फॉल नहीं करवाना चाहते थे उस 1 मीटर बॉक्स के अंदर, लेकिन कोई समस्या यहां पेश नहीं है जापान को खाता खोलने में। 1-0 से इस ओपनिंग क्वार्टर में विद इन 2 मिनट्स यहां पे गोल किया है। Japan have that one center shot opportunity and they converted that. Hong Kong have missed that. In fact, Hong Kong have had 2 attempts on goal. They haven't been able to score yet. Japan, on the other hand, the lone opportunity that they got from the center. We had Yuki Moriya missing one earlier. Hikaru Takahashi in goal for Japan. Lutian Chan in goal for Hong Kong China. And there is an exclusion from Japan. It will be Naru who will be in the exclusion. That is a shot there from Hong Kong China. This is straight to Takahashi. He's right in the trajectory of the ball here, and now Japan on the attack. They come very close to goal. All he has to do is beat the goalkeeper. Does that with ease. Japan double the lead, double their scoring. It is 2-love in very quick time here for Japan, and it is Yun Lowry who has scored the number 3 there. First attempt on goal. He had 2 defenders who were almost breathing down his neck, and he had to go and beat the goalkeeper. Does that with ease. No emotions whatsoever from the Japanese coach. It was just like, yes, you have to do that, and you just did your job. There's nothing more than that. जी हाँ, शियोता योशिनारी उनके हेड कोच पूरी
गंभीरता से इस मैच पर नजर रखे हुए और 2 गोल होने के बावजूद भी चेहरे पर किसी तरह की कोई मुस्कान या कोई संतोष नहीं, क्योंकि काम अभी खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बहुत बाकी है। शुरुआती क्वार्टर है, ओपनिंग क्वार्टर में 2 मिनट में 2 गोल जरूर कर दिए हैं, लेकिन वो जानते हैं कि हांगकांग चाइना ने कल उज्बेकिस्तान के विरुद्ध जिस तरह से वापसी की थी, पिछड़ने के बावजूद 22-17 पे उस मैच को जीतकर अपने नाम किया था, तो वो एक पेनल्टी अब यहाँ पे इस तरह की त्रुटियां जापान के लिए हानिकारक हो सकती हैं। यहां से खाता खुलना चाहिए, अगर ये चूक की तो मानसिक दबाव भी बनेगा, नहीं बनेगा दबाव। हांगकांग चाइना भी अपना खाता खोलने में पीछे नहीं रहा है और ये काम करके दिखाया है उनके कप्तान हे मान चैंग ने, जिन्होंने इस पेनल्टी को लिया और गोल के अंदर दागा। बेहतरीन एग्जीक्यूशन, ये देखिए पानी में किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग एग बीटर के साथ अपना पूरा बॉडी को राइज किया और पूरी ताकत टॉर्सो की उसमें झोंकते हुए फार पोस्ट पे कोने में गेंद दाग कर मारी है। 1-2 हांगकांग इस वक्त शुरुआती क्वार्टर में। लगभग 3 मिनट का समय हुआ है, 3 मिनट 10 सेकंड का। आक्रमण में जापान एक बार फिर से, गेंद मिली थी लॉरी को, दूसरा गोल करके दिखाया था लॉरी, लेकिन स्नैच अच्छा स्टील यहाँ पे हांगकांग चाइना का। 3-1 in favor of Japan. And that is a beautiful 6-meter shot goal from Yan Lowry. And we'll have to see the replay on how the goal had been scored. There is that 6-meter shot. One shot Japan had got, they've converted that. Hong Kong had one opportunity for a 6-meter shot. It was not to be scored. They will get possession out here. And it's right to the goalkeeper there. That was Shun with that shot. And immediately on the counter are Japan. Japan, they rely on very fast counter-attacking like this, where they go ahead and keep the scoreboard moving. That is what they rely on. It is Yuki Moriya who has scored and has made it 4-1 for Japan in just about 4 minutes time in the first quarter. That was a deflection as well from the goalkeeper, but it's gone inside the goal. फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव जिसे कहते हैं, पूरा चांस लिया वहां पे उन्होंने नियर पोस्ट पे, हालांकि डिफ्लेक्ट हुई थी लेकिन वो डिफ्लेक्शन भी नेट के अंदर गई। यूकी मौर्य 16 गोल्स कर चुके हैं अब तक, जिन लॉरी और यूकी मौर्य का ये इस मैच का पहला गोल। तो अच्छे टॉप स्कोरर्स हैं उनके स्क्वाड में और जापान रियलाइज करता है 4 मैच खेले हैं, एक और करारा प्रहार लेफ्ट फ्लैंक से यहाँ पे चाइना हांगकांग के लिए, लेकिन उसे नलीफाई किया बहुत खूबसूरती से। हिकारू तकाहाशी गोल बार के नीचे हैं यहाँ पे जापान के लिए। लेफ्ट फ्लैंक से प्रहार करारा था लेकिन पूरी तरह से नजर बनाए रखिए। एक विफल प्रयास यहाँ पे जापान का, एक रेयर साइट राइट टू तकेरा का ये प्रयास था। जहां तक हांगकांग चाइना का सवाल है, उनके लिए लोट चैन गोल बार के नीचे हैं। किशोर, अपने डीडी स्पोर्ट्स के व्यूअर्स को हम जरा बता दें कि इस मुकाबले में ग्रुप स्टेजेस कल तक के मुकाबलों में सबसे ज़्यादा गोल जो किए हैं वो जापान ने ही किए हैं। ठीक है, उन्हें एक एक्स्ट्रा मैच खेलने को मिला है, 4 मैच खेलने के बाद 95 गोल, लगभग शतक बनाने के करीब हैं। अब यहाँ पे 4 गोल कर चुके हैं तो केवल 1 गोल दूर हैं कुल शतक बनाने से। 99 गोल उनका कुल अंक है। एक और अंक यहाँ पे बटोर सकते थे लेकिन ये लगातार दूसरा प्रयास मिस हुआ है यूकी मौर्य का। हालांकि 1 गोल करने में कामयाब भी रहे हैं, लेकिन अगर वो 2 प्रयास उनके मिस ना हुए होते तो संभवतः इस वक्त ये स्कोर लाइन 6-1 भी हो सकता था। फिलहाल लेफ्ट फ्लैंक से यहाँ पे हांगकांग चाइना आक्रमण में मार्क है, पूरा पूल स्कैटर्ड है, एक खिलाड़ी पूरी तरह से मार्क किया हुआ है। क्या वहां पे एक लॉन्ग रेंज शॉट लेके थोड़ा समय व्यर्थ करेंगे? 7 सेकंड केवल बचे हैं, 6, और उसके बाद काउंटर अटैक बनाया यहाँ पे। अच्छा पोजीशन स्टैंड लगातार स्टील कर रही है जापान की टीम और उनके अटैक्स को नलीफाई भी कर रही है। Japan, they've always scored goals by the dozens there. 24 against Singapore, and just go one more here. This is goal number 5 for Japan. Just been talking about how they score goals by the dozens, and it's Naru who has scored Japan's 5th goal, and they're looking very strong to get at least a dozen out here today.
24 against Singapore, 35 against India, 12 against Kazakhstan and 24 against Thailand, and that's what they've scored. किशोर, पूल के अंदर जश्न है, लेकिन पूल के साइड पे शियोता योशिनोरी जिस तरह से अपनी गंभीर मुद्रा में रहते हैं, मुझे लगता है कई बार तो जापान के खिलाड़ियों को भी संदेह हो जाता होगा कि भाई गोल हुआ भी है कि नहीं। उत्साह बड़े नाखुश नजर आ रहे हैं। फिलहाल 5-1 से हांगकांग परास्त किया जा रहा है। इस पूरे क्वार्टर में दबदबा है। पिछले 6 मिनट के अंदर अंदर 1 गोल केवल कर पाया है कर्टसी उनके कप्तान मैन चैंग की तरफ से, लेकिन 5 गोल जापान की तरफ से। और जिस सेंचुरी की, जिस सैकड़े की मैं बात कर रहा था, विसल बजाकर यहां पे फ्री थ्रो दिया था और अंदर गई नहीं। दुर्भाग्य रहा यहाँ पे। ये भाग्य जो साथ नहीं देता है कई बार किसी टीम का, आप उसे बैड दिन कहें या किसी तरह का और एक जिंक्स, जिसकी वजह से ये 2 प्रयास खाली रहे हैं। Sometimes you also need luck to go your way, and clearly Hong Kong at this point, they don't seem to be having that. They've been denied by the crossbar, they've been denied by the woodwork a couple of times now. Japan on the other hand, they've had their slice of luck very well. Possession will continue with Japan. With Hong Kong rather now. Possession with Hong Kong. Now Japan. It could be a one-on-one option. 2 defenders coming around, but it does not matter. It absolutely does not matter. Half a dozen for Japan out there. It is Yan Lowry again who has scored his 3rd goal of this match here. There you see 2 defenders, 1 goalkeeper, and everybody just becoming mere spectators. और एक बार फिर से कोच ने सिर्फ पीछे अपने कंटिंजेंट, अपने साथियों को देखा। क्या इशारा था, क्या कोड लैंग्वेज थी, ये रोचक रहेगा जानना। 6-1 से इस ओपनिंग क्वार्टर में जापान पूरी तरह से छाया हुआ है। काउंटर अटैक यहाँ पे हांगकांग चाइना बिल्ड करना चाहता है। सेंटर ऑफ द पूल में 6 मीटर मार्क की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन 3 डिफेंडर ठीक उनकी नजरों के सामने। राइट फ्लैंक पे पास दिया है, नंबर 7 को लॉब भर किया। ठीक वहां पे होल सेट पॉइंट में मौजूद जरूर थे और गोल किया है यहाँ पर। बिल्कुल सही रणनीति, ज्यादा ताकत लगाने की कोशिश नहीं की। और अब यहाँ पे एक बदलाव, नंबर 14 आएंगे हांगकांग चाइना के लिए। सैन ली को पूल में उतारा गया है, लेकिन नंबर 2 जिस खिलाड़ी ने गोल किया है, शुन चेंग, बधाई के पात्र हैं। अपना संयम बनाए रखा, होल सेट पॉइंट पे थे। गेंद थोड़ी सी दूर गई थी, कलेक्शन उतनी अच्छी नहीं थी, पीछे डिफेंडर ने मार्क किया होता, सामने गोलकीपर के रूप में हिकारू ताकाहाशी भी मौजूद थे, लेकिन फटाफट कलेक्ट करके ठीक उनकी बाजू के नीचे से एग्जीक्यूट किया। केवल 30 सेकंड इसमें बचे हैं। जापान अगर यहाँ पे एक और गोल निकाल लेता है तो पूरी तरह से रोक नहीं पाएंगे इसको अगले क्वार्टर में, और वो करके दिखाएंगे। जी हाँ, अस्तुया मैदा का ये गोल ओपनिंग गोल है उनका और 7वां गोल जापान का। 17 वर्षीय इस युवा टीनेजर की एक्यूरेसी देखिए, रिप्ले में क्या खूबसूरत अंदाज से एजिलिटी और ताकत और सटीकता का सही मुजाहिरा यहां पे किया है नंबर 11 मैदा ने। Every time Japan get to the goal mouth, just looks like it's only a matter of time before they net the ball in. They've put 2 defenders also in their wake, along with the goalkeeper. Excellent work from Japan. 7-2 as we speak here. And we're just running out of time in this first quarter. And that's the hooter. And with the hooter, it will be Hong Kong, China, with just 2 goals in the first quarter. But Japan, on the other hand, getting 7 goals in that first quarter. They've made a mincemeat of this Hong Kong defense, steamrollered past them, and they've netted 7 goals with Yan Lowry netting 3 goals, with Enishiura, the captain, Naru, Sakamaki, Yuki Moriya and Atsuya Maeda netting 1 goal each. And there you see the shot efficiency percentage, 63% for Japan, 28% for Hong Kong, China. And that's come from the fact that they've only had 7 attempts on goal and they've only scored 2 of them, while Japan on the other hand have had 11 attempts on goal
and have scored 7 of them, just missing 4 goals in there. And that's how the juggernaut rolled, that's how the juggernaut started, and that's how Japan went on with their business there of scoring, scoring and scoring. That was Nishiura, the captain. Hong Kong did get a penalty. It was converted by Heyman, the captain. But post which it was just almost one-way traffic with Japan dominating the proceedings. The hooter goes, indicating about 30 seconds left for the second quarter. There it is, second quarter is about to begin. Hong Kong, China 2, Japan 7. Hong Kong, China have got about 24 minutes left in this contest to draw level with Japan and to take the lead. All this while trying to keep Japan quiet in their attack as well. We're all set for the next 8 minutes of action in the second quarter. We're waiting for the referee's whistle. Victor of Kazakhstan with the whistle. Alpesh Mahendra Patel is the second referee. Akbar Sadikov of Uzbekistan is taking care of the VAR. And the sprint has commenced, and very easily Hong Kong take possession there in the second sprint. They need to do something better out here. First half, just 2 goals is not going to help them anyway in such a knockout encounter. A win here will put the teams in the semi-finals, closer to a medal in the 11th Asian Aquatics Championship. The losers will go ahead and play for classification matches, and that is more of what Hong Kong would need. That was Kong Cheng of Hong Kong there. There you see, he had the time. He went ahead, turned around and scored because there was no defender out there nearby. He only had to beat the goalkeeper. There you see, it was just him and the goalkeeper, and with these beats the goalkeeper. एक चूक हुई वहां पे दरअसल जापान के गोलकीपर हिकारू तकाहाशी से, क्योंकि गेंद उनकी तरफ आ रहा था, उन्होंने थोड़ा सा मिस कैलकुलेट किया। ये कितनी शानदार तरीके से फोंग वहां पे एक स्ट्रॉन्ग स्विम लगाकर गेंद तक उनसे पहले पहुंचे। एक नेचुरल रिफ्लेक्स रिएक्शन था गोलकीपर का गेंद की तरफ जाना। फोंग का ये पहला गोल है और हांगकांग के लिए तीसरा गोल। कल उज़्बेकिस्तान के मुकाबले में भी 4 गोल किए थे फोंग ने, तो एक बेहद अहम खिलाड़ी हैं। और ये है नंबर 13 गोलकीपर हांगकांग चाइना के चैन लुट। किशोर, हम पहले भी बात कर रहे थे कि जिस तरह से मुकाबले मोर एंड मोर इंटेंस हो रहे हैं और ख़ासतौर से इन क्वार्टर फाइनल स्टेजेस में, यहाँ पर दूसरा क्वार्टर सबसे अहम हो जाता है। चाहे आप लीड कर रहे हो पहले क्वार्टर में, तो आपको लीड लगातार मेंटेन करनी पड़ेगी ताकि आपको वो मानसिक एडवांटेज मिले, एक साइकोलॉजिकल एज के साथ आगे बढ़े। एक और शॉट यहाँ पे, और यहाँ पे मानसिक एज की अगर बात है तो वो पूरी तरह से जापान के पास है। गोल नंबर 8 और खिलाड़ी कोई और नहीं, अत्सुया मैदा, जिनका ये दूसरा गोल है। तो दूसरे क्वार्टर में भी जिस अंदाज से 7-2 से जीते थे पहला क्वार्टर, यहां पे भी देखिए नियर पोस्ट 2-2 खिलाड़ी, हालांकि उस होल सेट पॉइंट पे उनका एक साथी मौजूद जरूर था, लेकिन जरूरत नहीं पड़ी। ठीक उस डिफेंडर, अपने अटैकर और गोलकीपर के बीच में से एक तीर की भांति उस तेज तर्रार प्रहार से मैदा ने दूसरा गोल किया है और जापान के लिए 8वां। 8-3 से इस दूसरे क्वार्टर में अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग पोजिशन में जापान इस क्वार्टर फाइनल नंबर 3 आज मेंस के मुकाबलों में। When you get chances at scoring 6-meter goals, and when you score, gives you a lot of confidence. There's a no-look shot there, a backhand that was tried there from Hong Kong's Kong Cheng, but just about away from the target, just inches away from the target. This could be a goal. No, what a save! Japan have gone ahead and set a benchmark that whenever they go ahead and go near the goal mouth, there is a goal, and that's the benchmark that they have set. That was Atsuya Maeda there. जी हाँ, बिल्कुल। अत्सुया मैदा अमूमन मिस करते नहीं है इस तरह के शॉट, बहुत नजदीक थे उस 1 मीटर बॉक्स के अंदर। लेफ्ट फ्लैंक से कोई चूक नहीं होनी चाहिए थी।
लेफ्ट हैंड पे था, इसीलिए नियर पोस्ट की तरफ टारगेट किया था, जिसकी वजह से मार्जिन काफी नैरो था। एक और करारा प्रहार यहाँ पे हांगकांग चाइना की तरफ से, लेकिन अप टू द टास्क यहाँ पे एक बार फिर से हिकारू ताकाहाशी। बेहतरीन गोलकीपिंग की है इन्होंने पिछले और इस दूसरे क्वार्टर के भी शुरुआती कुछ मिनटों में। किरिल उस फ्रेम के बिल्कुल कॉर्नर में थे। किरिल रुस्तमोव हेड कोच हैं हांगकांग चाइना के, कल काफ़ी संतुष्ट थे उज़्बेकिस्तान को परास्त करने के बाद अपनी टीम के परफॉर्मेंस से, और आज इस दूसरे क्वार्टर में भी अपना संयम बनाए हुए हैं किरिल। लगातार ब्रेक्स के बीच में गाइडेंस और रणनीतियों में लगातार तब्दीली करते रहे हैं। रियातारो यामामोटो नंबर 10 की टोपी के ये खिलाड़ी जापान के लिए राइट फ्लैंक से आक्रमण बना रहे थे। Exclusion for cap number 5 of Hong Kong China. Xing Yu will go into the exclusion center, and as he goes there, Japan get their 9th goal of this match here. Roisuke, how long can you keep Roisuke away from scoring goals? He's got 9 goals in the competition. This is his 10th. 7 field goals and 2 penalties before this. And this is goal number 10 for Roisuke. And the first of this match as Japan score their 9th goal in this first quarter final that they're playing here. यही बात है, खासियत है जापान की, जैसे मैं पहले भी बात कर रहा था कि 95 गोल थे इस क्वार्टर फाइनल के शुरू होने से पहले, और 95 जमा 9, अब यहाँ पे आप लगा लीजिए 104 गोल वो कर चुके हैं। तो उनके सभी खिलाड़ी इन फॉर्म हैं और अच्छे स्कोरिंग रेट है, स्ट्राइक रेट बेहतरीन है। फिलहाल पोजीशन यहाँ पे हांगकांग के पास था, लेकिन एक अच्छे डीप सेंटर पास के साथ लेफ्ट फ्लैंक की तरफ गेंद बढ़ाई थी। इतनी दूरी से ताकत तो थी शॉट में, लेकिन इतनी नहीं कि यहाँ पे गोलकीपर हिकारू को पराजित कर सके। और इस काउंटर अटैक में जापान अच्छी एंटीसिपेशन गोलकीपर की। Well, on the counter attack, it was number 3 of Japan, Check Hei. Did not know where the ball was and thereby missed collecting the ball clean, and that went to the goalkeeper out there. But on the other hand, seen Hong Kong China trying to attempt for a goal, but they are not successful. They don't get their hands on the goal out there. And the counter there, Japan, are they getting a chance here? They are getting a chance, but no. It is well saved by Lutian of Hong Kong China. Puts his hand out and stops that ball over there. And Hong Kong's Shun with the ball now. He passes it to his teammate Jason. Jason is involved in a tussle with Hiroto. Jason sends it there. Will there be a no-look shot? He turns around, but Hikaru Takahashi gets a hand to it. The ball does try to go inside the goal on the rebound, but it's saved by Takahashi. कम से कम 2 गोल और चाहिए हांगकांग को इस क्वार्टर में बने रहने के लिए, लेकिन गोलों की बारिश है जिसकी तरफ से हो रही है, वो उस टीम का नाम है जापान। और उनके कोच पे जब कैमरा गया है, एक दिलचस्प एक्सप्रेशन देखने को मिला है। ये गोल आया है कप्तान इनिशी उरा की तरफ से, जिन्होंने पहला गोल किया था, खाता खोल के दिया था जापान को, और ये उनका दूसरा गोल है। और कुल योग यहाँ पे जापान का हुआ है 10। ओ कितने नैरो मार्जिन से डिफेंडर ठीक उनके सामने थे, शन चिंग, जिन्होंने पूरी कोशिश की थी अंतिम क्षण तक कि उस प्रहार को रोक सके, लेकिन कप्तान इनिशी, उनकी सटीकता, सतर्कता और टेक्निक का एग्जीक्यूशन बेमिसाल। Hong Kong there, Jason with the ball, turns around, tries a single-handed attempt, but a weak attempt on goal. Hikaru Takahashi will save that. Here is Japan on the counter. It should be a one-on-one mostly. There is a goalkeeper, there is a defender, but it gets on with the defender clearing it in the first instance. And we will have a penalty because it's a foul that happened in that 1 meter area. So it's a penalty here for Japan to go 11-3 up. There it is. Lai Ho, the guilty party here, and Enishi Ura,
The captain slots the ball home, and it is 11 to Japan, 3 to Hong Kong, China. There you see, aiming for that top right corner, did not let the ball bounce, went on the full and hit the nets out there. कप्तान इनिशी उरा अपनी टीम के लिए लीडिंग बाय द एग्जांपल। तीसरा गोल था उनका, और पेनल्टी को मिस कर जाते तो न सिर्फ मनोबल के लिए ये बहुत नुकसान दे देता है, लेकिन कप्तान इनिशी ने यहाँ पे बेहतरीन एग्जीक्यूशन किया। अमूमन वाटर पोलो में एक स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल ट्रेड बनाकर रखते हैं खिलाड़ी ताकि उस ड्रैग को अवॉइड किया जा सके और एक स्ट्रॉन्ग फ्री स्टाइल मेंटेन रख सके, स्पेशली साइड से। लेकिन जब आप पेनल्टी लेते हैं तो आपको एक स्ट्रॉन्ग एग बीटर होना पड़ता है ताकि आप वर्टिकल पोजीशन में एक ड्रैगन की भांति सीधा हवा में उछाल मारकर और सरफेस से जितना ऊपर छलांग ले सके उतनी ही ताकत और टॉर्सो को पूरा ट्विस्ट करके एक शॉट लें। और इनिशी उरा ने जिस भांति करके दिखाया था, यहाँ पे एक और निशान चूक गए। तारीफ ही कर रहा था मैं जापान के खिलाड़ियों की। यो शुमाया इस वक्त वो एक शॉट लेना चाहते थे उस 2 मीटर बॉक्स के अंदर। पोजेशन अभी भी जापान के पास ही है और उन्होंने इशारा किया कि एल्बो यूं ना मारे, नहीं तो फॉल दिया जा सकता है। भाग्यशाली रहे यहाँ पे हांगकांग चाइना की, उनके अगेंस्ट एक और पेनल्टी नहीं की। अभी हाल ही में कप्तान ने पेनल्टी को तब्दील करके अंक दिलाया था 11-3 पर। इस वक्त बेहद स्ट्रॉन्ग पोजीशन में जापान की ये टीम। एक और रोचक बात जापान की टीम के बारे में है कि ये एकलौता ऐसा कंटिंजेंट है जो यहाँ पर 14 या 15 मेंबर्स नहीं बल्कि केवल 12 मेंबर्स लेकर आए और उन्हीं में रोटेशनल सब्स्टिट्यूशन के चलते इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि 95 गोल अब तक किए थे और 11 आज। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सशक्त ये खैमा है जापान का। जूडो इनका नेशनल गेम है, एक बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट यूनिट मानी जाती है और मार्शल आर्ट्स उनकी लाइफस्टाइल का एक बेहद अहम हिस्सा है। और जब हम वाटर पोलो की बात करते हैं तो उसमें जाहिर है स्विमिंग स्किल्स के अलावा एक बेहद एजाइल बॉडी आपकी ज़्यादा मददगार रहती है, खासतौर से जब आप पेनल्टीज लेते हैं या एक लॉन्ग रेंज शॉट मारते हैं। इसी भांति 2 लॉन्ग रेंज शॉट से सेंटर ऑफ द पूल और राइट फ्लैंक से मारे गए। भाग्यशाली रहे हांगकांग की 2 गोल और नहीं हुए। 11-3 पर फिलहाल 50 सेकंड बचे हैं इस दूसरे क्वार्टर में, क्वार्टर फाइनल नंबर 3। Ball with Chai, and he's got Japan's Rita right behind him, trying to defend the ball. Gets on the center there. Ball, it's a back pass to the goalkeeper out there. Hikaru Takahashi sends it back to the Japanese there. It is Lorian, and he scores! A long range shot almost from that 6-meter mark there, and Japan, the benchmark that they have set of scoring a dozen goals, they've achieved right here in the second quarter. There it is, he rises and goes ahead and scores. Just bounces the ball right on the goal line, and the ball goes and crashes into the net here. And with that, there is a timeout also that has been taken by the Hong Kong team. Just about 19 seconds that are remaining in the second quarter, and the Hong Kong team have taken a timeout. The 9 goals behind. अंतिम 20 सेकंड बचे हैं। पिछले 20 सेकंड में जब डाइंग सेकंड्स होते हैं, अमूमन जो टीम लीड कर रही होती है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेसेंट हो जाती है, लेकिन जापान जब आक्रमण बनाता है वो कुछ ना कुछ करके ही जाता है। फिलहाल पोजीशन यहाँ पे दिया है उनके हाफ में। हांगकांग चाइना आक्रमण करेगा, एक लॉब के साथ सेंटर ऑफ द पूल से शायद लेफ्ट की तरफ देंगे। समय है यहाँ पर अच्छा खासा और ये भाग्य बार बार इनके विरुद्ध जाता हुआ। और दूसरे क्वार्टर की समाप्ति 12 जापान और केवल 3 हांगकांग चाइना। तो ये दर्शाता है कि किस तरह से पूरे दबदबे के साथ इस मैच को डोमिनेट किया है। मैं अपने
साथ ही कमेंटेटर के साथ ये जिक्र कर रहा था। ये देखिए स्कोर कार्ड पर नजर डालिए, दूसरे क्वार्टर की समाप्ति पर हांगकांग 3 और जापान 12, और जापान वो टीम है जो 12 ही खिलाड़ी लेकर इस टूर्नामेंट में आई है। इस 11वीं एशिया एक्वेटिक चैंपियनशिप का ये तीसरा क्वार्टर फाइनल के स्टैट्स पे नजर डाली। शॉट एफिशिएंसी हांगकांग चाइना मात्र 20% और 60 जापान। 12 में से 20 में से 12 शॉट निशाने पर, उनके 15 में से केवल 3। तो ये एक बड़ा अंतर है 20 और 60% का, जो दर्शाता है। स्प्रिंट हालांकि 2 इन्होंने जीती है हांगकांग चाइना ने, लेकिन पर्सनल फाउल्स 3 करने की वजह कोई ज्यादा हानि नहीं दे पाई जापान को। 12-3 से इस बहुत ही कमांडिंग पोजीशन में जापान की तारीफ करनी पड़ेगी। अपने लगभग एक युवा और एक लेस एक्सपीरियंस टीम के साथ इस एशिया एक्वेटिक चैंपियनशिप में शिरकत कर रही है। और मेंस के ग्रुप बी में 5 टीम्स के साथ भारत भी जिसमें था, कजाकिस्तान और थाईलैंड और सिंगापुर के हराते चखाते टेबल के टॉप पर फिनिश किया। और आज इस क्वार्टर फाइनल नंबर 3 में जिस तरह पे हाइलाइट्स में नजर डालिए, क्या कमाल का प्रदर्शन रहा है। और ये अत्सुया मैदा का गोल, वो देखिए अत्सुया मैदा, और उसके बाद नंबर 2 कप्तान एनशी उरा, जिन्होंने 3 गोल दागे हैं। पेनल्टी भी ली थी, ये वो पेनल्टी जो कप्तान एनशी ने ली थी। और ये एक और गोल जो फार पोस्ट को टारगेट किया, बेहतरीन ढंग से लॉरी ने एग्जीक्यूट किया था। इस पूरे 2 क्वार्टर के अंदर लगभग 16 मिनट पूरा छाया रहा है जापान, और यहां से और कितने गोल कर पाएगा। 95 जमा 12 यानी कि 107 गोल कुल मिला के जापान अब तक कर चुका है। और आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा उनका स्ट्राइक रेट है, कि विरोधी जैसा कि उन्होंने सिंगापुर को 24-16 से परास्त किया था, उसके बाद भारत के विरुद्ध 35-11 जो सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा है अब तक के ग्रुप स्टेजेस में और आज तक के खेले गए सभी मैचेस में, इतना बड़ा मार्जिन। और फिर कजाकिस्तान से एक बहुत नैरो हार, और फिर थाईलैंड को एक करारी 24 बनाम 12। सफ़ेद कैप्स यहाँ पे हांगकांग चाइना किरिल समोव के हेड कोच की कमानी में, और ये उनके कोच जापान के शियोता योशिनोरी। दोनों कोचेस क्या कुछ कह रहे हैं अपनी टीम से, ये उनके समन्वय, तालमेल और रिश्ते पर बहुत निर्भर करता है। There he is, putting up those small coins on the board and explaining them to the hilt. Hong Kong, China need more of those explanations, need more of those simulations, need more of those strategies to stop this marauding Japan unit. Scored a dozen goals, that's the least that they have scored. That was against Kazakhstan. They've already scored 12 in 2 quarters here. And they would need more of that here. That's the Japanese coach. He's always somebody who has very less emotions on his face. The sporadic crowd do enjoy water polo action out here at the Veer Savarkar Sports Complex. They've come in large numbers whenever they can, especially during the swimming, diving, the artistic swimming events, and when India was playing the water polo as well. But as we come to the business end of this tournament, we do expect a lot of fans to come in and cheer for the best Asian action, Asian water polo action. Small kids there having a good time. It's very nice, and once the hooter goes, look at the expression of that small kid there. और निश्चित रूप से जैसा आपने बिल्कुल ठीक तरह से बात की यहाँ पर कि जिस तरह से इतनी बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है और गुजरात के अहमदाबाद में जिस तरह से लोगों को एक इतने टॉप क्वालिटी एथलीट्स और स्विमर्स को देखने का अवसर मिला है, जाहिर है युवा बच्चों को, युवाओं में और उनके अभिभावकों में भी काफ़ी प्रोत्साहन की लहर दौड़ी है। और अलग अलग देश से आए हुए इन एथलीट्स के साथ इंटरेक्ट करने के बाद जो आपको प्रेरणा मिलती है वो भी एक बड़ा स्रोत। यहाँ पे तीसरा क्वार्टर और यानी कि दूसरा हाफ शुरू है। अब
तीसरी स्विम रेस कौन जीतेगा ये देखना भी रोचक रहेगा। एक बार फिर से हांगकांग चाइना ने बाजी मारी है, गेंद को स्नैच करके एक बैक पास किया है नंबर 10 को अपने साथी, खुद यहां पे रियातो याकोमोटो को गेंद मिली गिलमन चोइहिन ने, और अब नंबर 8 के पास है, पूरी तरह से मार्क है, गेंद को देख रहे, कंधे पर हाथ रखा हुआ है। इस तरह के फाउल प्ले कई बार रेफरीज माफ नहीं किया करते हैं, कितना आक्रामक उनको रेफरी को साइडलाइन से लग रहा है ये विसल के साथ पता चल जाएगा। और उन्होंने इशारा किया है कि गेंद जापान को दी जाए। जापान इस सेकंड हाफ में लेफ्ट टू राइट आक्रमण कर रहा है और अब राइट फ्लैंक पे नंबर 10 को गेंद मिली है। एक बार फिर से रियातोरो याकामोटो, एक बैक पास से सेंटर के सामने से प्रहार किया, नंबर 4 को गेंद मिली थी यू शोमायामा, जिन्होंने पहले एक अवसर मिस किया था, लेकिन इस बार इस मूव को बनाया इस 19 वर्षीय युवा टीनेजर के लिए। और ओपनिंग क्वार्टर के बाद अब इस तीसरे क्वार्टर में भी पहले ही कुछ सेकंड्स में गोल करके छका दिया, नियर पोस्ट सीधा उनकी आंखों के सामने था। एंटिसिपेशन बुरा नहीं था यहां पे हांगकांग के गोलकीपर का। देखिए चैन की जो मूवमेंट थी वो बिल्कुल सही दिशा में थी, लेकिन उस शॉट में इतनी गति थी कि शोयामा के शॉट को रोकना असंभव। अब 13-3। 6 out of the 14 action shots have been taken by Hong Kong, by Japan, and Hong Kong finally put one in there. It is Hong Kong's Shan Ching who gets them one more goal there. It's goal number 4 for Hong Kong. There you see a beautiful angle there on how Shan had scored that out of the near post and did go ahead and score. The bench looking on very pensively, but here on the right is Japan, and it's a lob only to his fellow teammate, and that goes into the goal. And it is Maeda who has scored Japan's 14th goal out there. Goal number 14 for Japan. There you see, excellent anticipation from Yuki Moriya. Instead of lobbing it on top of the goalkeeper's head, he sent it to his teammate, who almost had an open goal at his disposal because the goalkeeper was there to his right, and all he had to do was time, and he did that to perfection. निश्चित तौर से एक बेहतरीन गोल, तारीफ यहाँ पे करनी बनती भी है नंबर 4 शोयामा की, लेकिन ये गोल युकी मोरिया ने असिस्ट किया था। और जिस तरह से वो पूरी तरह मार्क किए हुए थे 1 मीटर बॉक्स के अंदर, और लॉब भर करने का जो उन्होंने साहस दिखाया। देखिए आपको जब पूरी तरह से मार्क कर लिया जाता है तो आप अमूमन गेंद को दूर फेंकते हैं, फ्लैंक बदलते हैं, लेकिन उन्होंने अपने साथी शोयामा को गेंद दी और उन्होंने उसको नेट करने में कोई गलती नहीं दिखाई। 14-4, एक गोल यहाँ पे कॉपी बुक टेक्स्ट यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने एग्जीक्यूट किया है जापान के खिलाड़ियों ने, ये दर्शाता है कि तकनीकी रूप से ही भी, ताकत के रूप से भी कितने तगड़े हैं। और ताकत का मौका दिखाने का मिला है यहाँ पे एक बार कप्तान को, एनिशी योरा का ये गोल नंबर 4 है इस खिलाड़ी को। देखिए 20 वर्षीय युवा खिलाड़ी, ये लगभग सभी टीनेजर जापान के श्रेष्ठतम अनुभव के हिसाब से नहीं है, लेकिन केवल 12 खिलाड़ी, इन युवा खिलाड़ियों ने जिस तरह से गोल्स की झड़ी लगा रखी है इस पूरे टूर्नामेंट में, निश्चित रूप से ईरान और जापान, ये 2 ऐसे टीम्स हैं जिनको आप संभवतः फाइनल में देखें। Excellent teamwork also from Japan. They've got 7 assists against their statistics. Hong Kong have just 2 out of the 4 that they've scored. Japan have got 7 assists out of the 15 that they've scored. Shows the amount of teamwork as well. And there is an exclusion as well. That is second foul as well. It's Ryosuke who is gone in, and Japan goal number 16. Goal numbers, beg your pardon, it is Hong Kong China, goal number 5 for them. In Zhang there with that goal there. There you see the left-handed shot coming in, and it beats Hikaru Takahashi. Japan's Lori Jun was there also to go ahead and stop it. There was a captain as well, Enishi Ura, but they were not able to stop
Hong Kong from scoring here. और ना ही आप जापान को रोक पाएंगे स्कोर करने से। ये 5वां गोल लॉरी का। Lowry, goal number 16. And every time there is a goal, it automatically, you start looking at the Japanese side, because they've been the dominant team out there. 16-5. Look at the number of action shots. They've got 16. They've converted 8 of them. और एक बड़ी खूबसूरत बात जो वाटर पोलो की है कि जब आपको गेंद पास की जाती है फ्लैंक से, जिस अंदाज में आप रिसीव करते हैं ना, उसी से पता लग जाता है कि आप कितने नियंत्रण में हैं उस आक्रमण के। एक बार फिर से जापान लेफ्ट फ्लैंक से आक्रमण बना रहा था। एक लंबा ट्रेड लेफ्ट फ्लैंक से स्विम किया था, एक लंबा डिस्टेंस, और उनका साथ देने के लिए आए भी थे और एक गोल कर दिया। यहाँ पे विसल बजाकर गेंद को रोका था, पोजीशन जापान के पास ही रखा था। एक लंबा स्विम के बाद लेफ्ट फ्लैंक से ठीक उनका साथ देने के लिए सेंटर ऑफ द पूल में गेंद मिली नंबर 12 को, और हल्का सा लॉब और हथेली का पुश किया। शानदार टेक्निक का मुजाहरा यहाँ पे मात्सुनो की तरफ से, जिनका ये दूसरा गोल है। और गोल नंबर 17 इस तीसरे क्वार्टर में। अब यहाँ से वापसी के द्वार हर बीतते क्षण के साथ मुश्किल होते जाएंगे, क्योंकि चाहे इस तीसरे क्वार्टर में अभी भी लगभग 4.5 मिनट का समय बचा है, लेकिन जिस तरह से जापान ने अपनी गेंद पर पोजीशन और हांगकांग चाइना के आक्रमणों को धराशायी किया है, नलीफाई किया है। पोजीशन, एक सॉफ्ट लॉब यहाँ पे मिला था, दौड़ लगाकर आ गए थे यहाँ पे जापान के डिफेंडर और हिकारू तकाहाशी, उनके गोलकीपर भी। कोई अवसर नहीं। अब एक अच्छा स्ट्रॉन्ग स्विम, अच्छी हॉरिजॉन्टल पोजीशन बना के रखी है। ओहो, थोड़ी सी गति की वजह से गेंद हाथ से निकली, लेकिन विसल बजाकर वापस फिर पोजीशन जापान को ही मिलेगा। और पेनल्टी दी गई है यहाँ पे, क्योंकि अच्छा खासा 1 मीटर डिस्टेंस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फाउल किया था। 1 मीटर बॉक्स के अंदर अगर आप गेंद लेकर जा रहे हैं, पीछे से स्ट्रॉन्ग फाउल और रेफरी का इशारा कि पेनल्टी ली जाए। नंबर 3 लॉरी, गोलों की लॉरी भर कर लेकर आए हैं। 5 गोल कर चुके थे, 6ठा गोल यहां पे, पेनल्टी नहीं चूकेंगे। जॉन लॉरी का गोल नंबर 5, 6ठा गोल दरअसल, और ये गोल नंबर 18। जापान, कोई अवसर नहीं यहां पे इस युवा लुट चैन के लिए। They have to find a way. Hong Kong have to find a way to stop Lowry Jun and Nishiura. They've scored 10 goals among themselves. Natsuya and Rosika scoring 4 goals among themselves. What a game Japan are having here. They've done everything right ever since they set foot in the pool. The defense has been extremely compact. Tactical brilliance has been to the fore. They've done really well on counter-attacks. Agility has been extremely good there. In fact, that is not a goal, because that ball was put into goal after the referee's whistle. So that will not be counted as a goal though. But what we've been talking about is how well they've been doing everything that they need to be doing. Defense has been absolutely compact. They haven't let Hong Kong slip away. They've had man-to-man markings brilliantly. No space for the Hong Kong strikers to turn with the ball, to do something that would give them a goal. On the other hand, Japan, very quick counter-attacks, excellent use of the pace, good freestyle swimming techniques as well. Their passing channels have been excellent, and that everything that they had to do right, they have done it right, and that shows in the scorecard there. 26 attempts on goal, and they've converted 18 of them. Now the goalkeeper is out of line here. Japan's goalkeeper is out of line, but Hong Kong cannot make it count. But here, is this a one-on-one? No. There is the whistle that comes on, hands over the possession to Hong Kong here. Whereas Hong Kong, on the other hand, have had 17 attempts on goal. They've only been able to convert 5 of them. A miserable 29% of efficiency. And those numbers don't do justice, especially in knockout matches like this. It is Enishi. Enishi then passes in to his
teammate Ryotaro, and that is goal number 19. Ryotaro Yamamoto. That is his first goal of the match. He has produced 2 assists as well in the match. He's done a steal as well. And now the only thing that he has not done is to score a goal, and he's done that as well. देखिए अंग्रेजी में कहते हैं स्कोरिंग एट विल, अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पे गोल कर रहे हैं। जब जब आक्रमण बना रहे हैं 10 में से 10 ही अटेम्प्ट लगभग देखने में ऐसा लग रहा है। हालांकि स्टैट्स पे जब हम नज़र डालेंगे तो उसमें शायद थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन जापान ने यहाँ पे गोल्स की जो झड़ी लगाई है, और ये तीसरे क्वार्टर में अभी भी 2 मिनट बाकी है। यहाँ पे और कितने गोल करेंगे ये कैलकुलेट करना भी मुश्किल है। और फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे, निराशा हांगकांग की तरफ से, पानी में हथेली मारकर अपनी निराशा और फ्रस्ट्रेशन को एक्सप्रेस किया, और होना स्वाभाविक भी है। क्वार्टर फाइनल खेल रहे हैं आप 11वीं एशिया एक्वेटिक चैंपियनशिप का, और गुस्से में देकर मारा है और गोल मिलेगा यहाँ पे। नंबर 3 चोकचुआंग का ये गोल है। एक शॉट लिया है और एक वही कामयाब हुआ है, नंबर 3, और गोल नंबर 6। काफ़ी देर बाद गोल आया, और गुस्सा और आवेश देखिए यहाँ पे चैंग का। और क्यों ना हो, क्योंकि आप क्वार्टर फाइनल खेल रहे हैं, और कोई भी टीम चाहे कितना ही मैचेस हारी हो, लेकिन अगर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है तो उस मैच को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती है। जापान अब इसका कैसे प्रतिशोध लेगा। नंबर 10 खुद यामामोटो गेंद लेके आगे आए हैं और पूरी तरह से छका दिया यहाँ पे युवा लोटचैन को, और राइट फ्लैंक के नैरो मार्जिन नियर पोस्ट को टारगेट किया रियोतारा यामामोटो का। गोल नंबर 2 है और 20वां गोल। मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था कि अभी इस क्वार्टर में 1.5-2 मिनट बचे हैं और 20 गोल अभी भी बोर्ड पर टांग दिए जापान ने। And we are still in the third quarter here. Japan have scored 20 goals. How many more can we see here? Hong Kong on the right. They are absolutely clueless out here on how to stop this Japanese onslaught. Will they get a goal here? No, they will not. The goalkeeper, 2 Japanese defenders all around. And there is a penalty because a foul has occurred in that 1 meter area there. So Hong Kong get a penalty there. 2 penalty fouls so far by each team. And Hong Kong is ready for their 7th goal there. So that is a goal that is scored there. And it is Tas Hin who has scored that goal. There you see. Rises from above the water and then bounces the ball right at the goal line, and it goes and crashes into the net. Good attempt, good take, and a good finish as well. गुड अटेम्प्ट भी और एटीट्यूड भी जिस तरह का था, काम एंड कंपोज। किशोर, काफ़ी आकर्षक गोल रहा। जो टीम पिछड़ रही होती है लेकिन पिछड़ने रहेगी वो, क्योंकि इस तरह से गोल्स की झड़ी लगा लगा कर यहाँ पे जापान ने साकामाकी का ये गोल है, नारू साकामाकी 19 वर्षीय, और उनका ये दूसरा गोल और गोल नंबर 21 जापान का। मैं बात कर रहा था, जब जब हांगकांग को मौका मिला है एक प्रतिशोधात्मक अप्रोच के साथ जापान ने बदला लिया है और लगातार गोल करके उन पर दबाव और अपने गोल्स की झड़ी बढ़ाते रहे हैं। Hong Kong, 30 seconds remaining in this quarter. Hong Kong would need to produce at least 1 goal, which will put them in good stead ahead of the next quarter, but that's a wrong pass there. Cleanly taken by Japan's Hiroto. And there's no goalkeeper out there, so just lob the ball and it goes into goal there. Goal number 22 for Japan. Hong Kong have taken off their goalkeeper and asked them to also attack because they need goals. But the danger of that is goals like these are sure. There it is, Hikaru Takahashi, the goalkeeper, scoring Japan's 22nd goal. There you see, lobs it, throws it out there, goes beyond everybody and just goes and settles
in the opposite goal. Goal to goal. देखिए ये लाजमी है जब आप मैच में इतना पिछड़ रहे हैं और तीसरे क्वार्टर में डाइंग सेंड्स में ऑल आउट अटैक करना कई एक कॉमन स्ट्रैटेजी है। अभी भी बिना गोलकीपर के हैं और इस आक्रमण में कामयाब भी होंगे। नंबर 9 यहाँ पे हांगकांग के जेसन हो ने ये गोल किया है। कम से कम एक गोल की सांत्वना तो यहाँ पे जरूर मिलेगी। देखिए लेफ्ट फ्लैंक से पास मिला था, फिर राइट फ्लैंक पे देकर मारा है। एक अच्छा असिस्ट नंबर 5 ने 9 की तरफ से मिला और याओ फोंग ने ये गोल किया है नंबर 5 हांगकांग के लिए और गोल नंबर 8। Hong Kong have got back their goalkeeper because they just scored and the game restarts from the center. So they need a goalkeeper to stop that, and he stopped it. But at the end of the third quarter, it is Japan who are on 22 goals with Hong Kong, China with just 8 goals against their name, and Japan with 1 foot in the semi-finals. And that's the end of quarter 3. Hong Kong 8, Japan 22. Japan one step closer to a semi-final berth and also almost closing on a medal as well. While the team that loses this match will go and play the classification matches for standings from 5 to 8. स्टैट्स पे नजर डाली। यहाँ पे शॉट एफिशिएंसी 70% बनाम 40%। हांगकांग ने 20 में से केवल 8 और यहाँ पे 31 में से 22। ये बताता है कितना ज्यादा अंतर है। स्प्रिंट हालांकि हांगकांग ने जीती है, लेकिन तीनों क्वार्टर पूरी तरह से जापान के नाम रहे हैं। 9 स्टील्स जापान की तरफ से और 9 असिस्ट। ये दर्शाता है कि कितना संतुलित और आक्रामक स्क्वाड है जापान का। 9 स्टील और 9 असिस्ट के साथ खिलाड़ी ना सिर्फ हर एक खिलाड़ी अपनी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में है, बल्कि एक दूसरे का साथ देने में जो तकनीक और समन्वय की आवश्यकता होती है उसमें भी पूरी तरह से जापान खरा उतरा है। क्वार्टर फाइनल नंबर 3 है और ये आज के दिन का सेकंड लास्ट मुकाबला। इसके बाद एक और क्वार्टर फाइनल खेला जाना है उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में, लेकिन ये मुकाबला जापान जैसी श्रेष्ठतम टीम और उससे पहले हमने ईरान को देखा था, तो आप समझ सकते हैं कि कितना अहम है आज इस मुकाबले में जापान का प्रदर्शन, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी सेंड करता है। इस चौथे क्वार्टर की शुरुआत होने वाली है। स्कोर फिलहाल हांगकांग के 8 गोल्स हैं और जापान का पूरा जमावड़ा 22 गोल्स का। तो आप अंदाजा लगाइए कि अब यहां से हांगकांग के लिए वापसी सरल है या मुश्किल। नंबर 5 के ये खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन रहा है तोशियाकी मेडा। 1 गोल भी किया है और 3 असिस्ट इनके बेहद कामयाब रहे हैं। पूरी टीम के साथ मिल के चलते हैं। राइट फ्लैंक से जब स्ट्रॉन्ग स्विम बनाते हैं और विसल के साथ अल्पेश पटेल की ये चौथी और आखिरी क्वार्टर की स्विम, और हांगकांग ने लगातार चौथी स्विम पे अपना कब्जा जमाया है। पीछे बैकपास के साथ राइट टू लेफ्ट आक्रमण में इस सफेद टोपी की टोली। और अच्छा ट्विस्ट यहाँ पे, अच्छा डॉज करके ट्विस्ट किया, गेंद की पोजीशन नहीं खोई है, अच्छी ग्रिप बना के रखी है और पुश किया। उन्हें देख रहे हैं ऊपर निकल के, पूरे सर को बाहर निकाल के लगातार अच्छी हॉरिजॉन्टल पोजीशन बनाई है। गोलकीपर नंबर 1 जापान के लिए एक लंबा लॉब दिया था, लेकिन इतना ज्यादा लंबा हो गया कि वो गोलकीपर के पास ही चला गया। गोलकीपर चेंज हुए हैं हांगकांग के लिए। वहां पे लैंस लुई अब गोल बार के अंडर हैं क्वार्टर 4 में, और एक और गोल। सेंचिंग यहां पे नजर डालेंगे रिप्ले में। थोड़ा लेट आया है, लेकिन इस क्वार्टर के शुरुआत में ही आना एक अच्छा संकेत। शॉन चैंग का ये तीसरा गोल और 9वां गोल हांगकांग का। रिप्ले में अच्छा टॉप एंगल यहां पे कैमरा की तरफ से, और पूरी तरह से छकाया वहां पे हिकारा ताकाहाशी को। Japan on the attack from the right. He was waiting for support there. Yuki Moriya does get the support, but in the end the ball is cleared by an alert Hong Kong defense. 22 goals Japan have scored. They can afford to now go and test some of the different strategies that they would have planned, an alternate plan, put those plans into use
An excellent match simulation it would be for them. 22 goals to 9. Hong Kong, the bar denies Hong Kong. The woodwork denies them once again. We spoke about how you need luck as well. And Hong Kong clearly have missed out on some luck here. Ball goes to Toshiyuki. Toshiyuki then passes it to his teammate who's right there in the center. And there is a penalty because a foul has happened, and it is Enishi Ura. Will he take that? No, he will not take it. He has given it to his teammate Ryosuke, who will take the penalty. Goal number 23 for Japan. Goal number 23, Ryosuke Matsuno. His first penalty shot, and he's on a roll here. कप्तान ने मत्सुनो को अवसर दिया और मत्सुयो ने निराश नहीं किया है। मत्सुनो का ये तीसरा गोल है। टोपी नंबर 12, 9 गोल्स अब तक कर चुके थे और आज 3, कुल मिला के 12 गोल अब तक इस टूर्नामेंट में कर चुके हैं। बेहद इन फॉर्म खिलाड़ी, हालांकि जापान का तो हर एक खिलाड़ी फॉर्म में लग रहा है। सैकड़ा लगा चुके हैं गोल्स का इन 5 मुकाबलों में, और अभी और कितने करने बाकी हैं ये देखना रोचक रहेगा। हांगकांग फिलहाल सेंटर से राइट फ्लैंक पे गया, 1 मीटर बॉक्स में यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ। क्या ये गोल हुआ है कि नहीं देखना रोचक रहेगा। अल्पेश पटेल ने उंगली उठाई है ऊपर, वापस पोजीशन दिया, यहाँ से रीस्टार्ट करेंगे संभवतः, और पेनल्टी मिली है। 1 मीटर बॉक्स में अगर आप इस तरह से पीछे से लेंगे तो मुश्किलें हो जाती हैं। नंबर 8 मिस कर गए। स्नैच स्टील करने का प्रयास जरूर था, लेकिन बेहद निराश, और कोई और नहीं, ये खुद कप्तान मैन चैंग थे। पहले एक गोल किया था, वो पेनल्टी से किया था। काफी भरोसेमंद खिलाड़ी हैं चैन, लेकिन हांगकांग के लिए दुर्भाग्य कि उनके सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी भी यहां पर मिस कर गए। चौथे क्वार्टर में and Japan get a penalty there because of a foul that has happened in the 1 meter area. Hong Kong missing a penalty earlier, and in the next minute Japan get their chance at scoring from a penalty shot. It is Si Shan who's made the foul. Goal number 24. Sheng Shan guilty of that penalty foul in the penalty area, and it is John Lowry who scores 7th goal for him, and scores from the spot out there. There it is. The goalkeeper did anticipate, the ball hit his left hand, but still had enough power to rock it into the goal there. 24 goals for Japan. हरी टॉर्सो की पोजीशन जब आप पानी से निकलते हैं वही दर्शा देती है कि आपका शॉट कितना सटीक होने वाला है, और वहां पे जॉन लॉरी का ये 7वां गोल, हालांकि एंटिसिपेशन ठीक थी गोलकीपर की, इयान सुलुई की, लेकिन इतना तेज तर्रार वो प्रहार था, इतना स्ट्रॉन्ग शॉट था लॉरी का कि उनकी फोरआर्म से टकरा के गेंद अंदर ही गई। भाग्यशाली रही कि ज्यादा चोट वोट नहीं आई को। इस चौथे क्वार्टर में 24-9 की ये अजय बढ़त है। मेरे ख्याल से यहां से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हिकारू तकाहाशी जापान के गोलकीपर, और इयान से यहां पे एक बार फिर परीक्षा ली जाएगी, और अग्नि परीक्षा यान लोई की जापान लगातार लेता जा रहा है। इस अग्नि परीक्षा में नंबर 2 के खिलाड़ी कप्तान एनिशी ओरा का ये 5वां गोल है, और गोल नंबर 25 जापान का, क्वार्टर फाइनल नंबर 3, और जापान सेमीफाइनल की तरफ एक तगड़ा और सशक्त कदम रखते हुए। पूरा समय लिया, इतनी देर में डिफेंडर वहां तक पहुंचते, दौड़ जरूर लगाई थी हो जेसन ने उनकी तरफ, लेकिन कप्तान निशी और जॉन लॉरी ऐसे फॉरवर्ड खिलाड़ी हैं जापान के लिए कि जब जब उनके पास गेंद है उनकी नजर दोनों तरफ रहती है। एक बार काउंटर अटैक में फिर से जापान को राइट फ्लैंक पे अच्छा पास मिला है,
गेंद लेकर गए हैं जो हिरोतो को सपोर्ट पूरा मिलेगा, लेकिन मार्क करने के बाद गेंद को कंट्रोल नहीं कर पाए। विसल बजाई है अल्पेश पटेल ने और स्टार्ट करेंगे यहां से। थ्रो बार से लगा, अच्छा प्रहार था यहां पे तोशियुकी मेडा का। तोशियुकी मेडा केवल एक गोल किया है, लेकिन इतने असिस्ट किए हैं उन्होंने जापान के आक्रमण में कि उनका योगदान गोल के हिसाब से नहीं आंका जा सकता, लेकिन इतना बड़ा संतुलन जापान को मैदा प्रदान करते हैं कि उनके आक्रमण देखते ही बनते। एक बार फिर से राइट फ्लैंक से आक्रमण में जो हिरोतो गोल कर पाएंगे कि नहीं। इस बार फिर से अच्छा ब्लॉक यहां पे लांसी लुई का। A very quick counter by Japan. That's what they rely on. Agility, counter attacks, technical acumen. 6-meter shot rolling. No, this is saved by the bar. And absolutely saved by the bar. That is Naru Sakamaki there. And has been saved time and again by the bar there. It is Yan Inas on goal for Hong Kong, China. 3.5 minutes remaining in this contest here. There's a chance for Hong Kong, China to score one more, and they do. They finally go into double digits here. That's the 10th goal. The bench is happy. And it is scored by Anthony, who has scored his first goal of the match here. There you see Anthony, number 6 of Hong Kong. That's in fact his first goal of the tournament as well. That should give him a world of confidence. 10 goals to Hong Kong, 25 to Japan. 3 minutes 22 seconds remaining in this contest. समय अच्छा खासा बचा है। जापान यहां से और गोल करके अपने प्रतिद्वंदियों को, अपने विरोधियों को फाइनल स्टेजेस पे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देगा, और वो मैसेज आएगा नंबर 3 जॉन लॉरी की तरफ से। 8वें गोल के रूप में उनका व्यक्तिगत रूप नंबर 3 जॉन लॉरी। कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहती है जापान की ये टीम। मुझे लगता है ईरान और बाकी टीम्स जो अगला क्वार्टर फाइनल खेलने वाली है, उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, सब बैठकर इस मुकाबले पर कड़ी नज़र रख रहे होंगे, या दूरदर्शन के माध्यम से अपने होटल में बैठे डीडी स्पोर्ट्स पर इस मैच को देख रहे होंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये वो टीम है जो फाइनल की प्रमुख दावेदार है ईरान के साथ। अगला क्वार्टर फाइनल जो यहाँ पे अंतिम क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा, उज़्बेकिस्तान बनाम कजाकिस्तान, दोनों ही टीमें कड़ी नजर रखी होंगी। एक और गोल यहाँ पे नंबर 5 की तरफ से आया है हांगकांग चाइना का। किरिल, उनके कोच शिन योंग यान ने गोल ये करके दिखाया है, और ये उनका दूसरा गोल है। शिन योंग यान एक लॉन्ग रेंज शॉट लिया था 6 मीटर से और पूरी तरह से परास्त किया हिकारू ताकाहाशी को। कोई अवसर नहीं ताकाहाशी के लिए, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। 26 गोल आपके पास, लगभग 15 गोल्स का क्वेश्चन है, और इस अंतिम क्वार्टर में 2 मिनट 37 सेकंड का खेल बचा। और ये जो जापान का अंदाज है गोल खाने के बाद एकदम प्रतिशोध लेने के लिए जब वो आते हैं, ये एक बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि जब वो काउंटर अटैक बिल्ड किया हो जापान ने और गोल ना किया हो। इयन लुई एक लंबे लॉब के साथ काउंटर अटैक बनाने के लिए नंबर 5 को गेंद मिली है, जिन्होंने अभी गोल किया था यांग येन ने। सेंटर ऑफ द पूल में नंबर 9 को मिली है। फिर फ्लैंक बदला है राइट फ्लैंक की तरफ, हालांकि खिलाड़ी पूरी तरह मार्क था। पोजीशन अल्पेश पटेल की विसल कह रही है कि वो हांगकांग के पास ही रहेगा, लेकिन समय समाप्त हो गया था। जो स्टाइपुलेटेड समय है 28 सेकंड का, जिसके अंदर आपको अपना पूरा आक्रमण और इस 25 मीटर के दायरे को कवर करके गोल तक पहुंचना और उसको एग्जीक्यूट करना होता है, वो समय ज़ाया हो गया था। 2 मिनट बचे हैं केवल यहाँ पे इस 34 और अंतिम निर्णायक क्वार्टर में, और जापान को यहाँ से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अगला कदम सेमीफाइनल तक बढ़ाने के लिए। Less than 2 minutes remaining. They've got a penalty here for Japan. Will it be goal number 27? Or can Yan Inas do something better here? No, it is
goal number 27. Ryuto Takeda scoring that goal. And देखिए किशोर, ये अब प्रैक्टिस का मामला हो गया है। रियोता टकेडा का ये 18 वर्षीय खिलाड़ी 1-2 अटेम्प्ट जरूर मिस हुए थे पिछले क्वार्टर में जब हाई बार पे लगा था, और कप्तान इनिशियोरा ने ये डिसाइड किया कि ये पेनल्टी ये ले ताकि उनकी आर्म्स खुलने का मौका मिले। आप बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में हैं और इस पेनल्टी को रियोता ने तब्दील करके निराश भी नहीं किया अपने कप्तान को। as I said earlier, you know, there's a time for them to try other combinations as well. In a very healthy position they are. Gives the captain, gives the coach to try out different things. It's okay even if one or two fails, you'll at least understand where they stand in terms of how, in terms of their planning and everything. This is number 7 there, and he scores. Hiroto Joe. Goal number 28. Excellent quick counter attack there from Japan. It was a long range throw from the goalkeeper. Hiroto did some good work, some solo work on the right, and then all he had to do was dodge the goalkeeper because the two defenders who were supposed to close in were a distant away. किशोर, वही बात है कि टकेडा का पहला गोल था और अब यहाँ पे जो हिरोतो का ये पहला गोल। सभी कोई खिलाड़ी छूट गया हो तो वो भी आकर यहाँ पे गोल कर लें कि ताबड़तोड़ हमले और इस जगरनॉट जापान को रोकना असंभव हो गया है। और अब यहाँ पे सिर्फ गोल प्रैक्टिस वाली बात रहेगा। ये 28 गोल बचे इस केवल 1 मिनट 10 सेकंड के अंदर। एक बार फिर से आक्रमण का प्रयास जरूर करेगा यहाँ पे हांगकांग चाइना। एक लंबा लॉब आया है, फ्लैंक चेंज किया था, क्या खुद गेंद को लेके आगे बढ़ेंगे? विसल बजा के पोजीशन वापस हांगकांग की तरफ दिया है अल्पेश पटेल ने, और नंबर 7 को बाहर जाने का इशारा भी किया है। टाइम आउट लिया है यहाँ पे हांगकांग चाइना ने, इस टाइम आउट को लिया है और नंबर 7 के खिलाड़ी को भी बाहर जाना पड़ेगा, ऐसा रेफरी का निर्देश है। किरिल और उनके साथी असिस्टेंट कोच खुश हैं, अभी थोड़ा सा देखने में मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन किरिल की निराशा साफ जाहिर है उनके चेहरे पर। बावजूद इसके कि उनकी टीम ने ताकत तो पूरी लगाई है, लेकिन जापान जैसी तगड़ी टीम के सामने खड़े रह पाना बड़ा मुश्किल है। अच्छा लग रहा है यहाँ पर किरिल को देख करके, अंतिम क्षणों तक भी अपने निर्देश दे रहे हैं। एक हेड कोच का यही उद्देश्य रहता है, यही उनकी प्रमुख भूमिका है कि वो अपने वार्ड्स का मनोबल और उनको प्रोत्साहन लगातार करते रहें। 1 मिनट का समय बचा है, केवल 1 मिनट 2 सेकंड का समय इस चौथे निर्णायक क्वार्टर में। तीसरा क्वार्टर फाइनल है मेंस का, ये आज 10वां दिन है और 28 तारीख से जब हमने सिलसिला शुरू किया था तो स्विमिंग, आर्टिस्टिक और डाइविंग के मुकाबलों के बाद वाटर पोलो का इंतजार सभी को था, और आज वाटर पोलो के क्वार्टर फाइनल शुरू हुए हैं। मेंस का ये तीसरा क्वार्टर फाइनल, जापान बनाम हांगकांग। It's actually very good to see every Japanese player getting on the score sheet there, including Hikaru Takahashi, did that long range shot when the Hong Kong goalkeeper was taken out of position. Goal number 12 for Hong Kong as we speak, and that is Jason Ho with that goal for Hong Kong China. Goal number 12. Just of academic and arithmetic interest is that goal. Talking about Japan, got Lori Jun, 8 goals to his name. Enishiura, 5 goals to his name. Atsuya and Ryosuke have 3 goals against their name. And every player, all the 12 players have at least scored a single goal in this match. Everybody have gotten themselves on the score sheet. One more try, but it goes way out. 33 seconds in this match. जापान के हिरोतो जो का वो जो लास्ट ट्विस्ट था, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी श्रेष्ठ एजिलिटी है। अब खुद यहाँ पे गोलकीपर भी आगे निकल आए हैं। हांगकांग चाइना के 7 खिलाड़ी पूल के अंदर आक्रमण बना रहे हैं। कितने गोल और अर्जित कर सकते हैं इस बीतते 2.5 क्षण में? केवल 15 सेकंड बचे और उनके आक्रमण के 9 सेकंड, 7, 6, 5, और क्या यहाँ पे गोल कर पाएंगे? ऐसा लग नहीं रहा है। जी हाँ, कर लिया है। एक और गोल हांगकांग चाइना के नाम मिला है कि नहीं उनके स्टाइपुलेटेड समय में, ये देखना रोचक रहेगा। लेकिन एक और गोल यहाँ से गोललेस छोड़े गए उस पोस्ट को। गोल नंबर 29। अल्पेश पटेल भी मुस्कुरा रहे हैं कि कितनी डेस्परेट सिचुएशन में हांगकांग चाइना ने
ये प्रहार किया था, अपने गोल को खाली छोड़ के आगे बढ़े थे यहाँ पे एयन से लुई, नंबर 1 के वो गोलकीपर। ऐसा डेस्परेशन में करना लाजमी भी है, क्योंकि क्वार्टर फाइनल में इस हार के बाद स्वाभाविक है। और गेंद को बाहर फेंका और आवेश में गेंद फिर वापस मिली कि एक लॉब करना चाहते थे। एक और प्रयास, क्या ये गोल में जाएगा? जी नहीं। इस हुटर के साथ समय की समाप्ति और स्कोर ठहरेगा अब 29 गोल्स जापान की तरफ से और 12 गोल यहाँ पे हांगकांग चाइना। 29 गोल, आप अंदाजा लगाइए। ये है फाइनल रिजल्ट वाटर पोलो का तीसरा क्वार्टर फाइनल। जापान ने जीता है 29 गोल बनाम 12 गोल। एक बड़ा स्कोर किशोर, और जाहिर है इस पूरे टूर्नामेंट में टॉप स्कोरिंग स्टैट्स में नजर डाली। यहाँ पे 44 में से 29 ठिकाने लगाए और उन्होंने 27 में से केवल 1200। शॉट एफिशिएंसी 44 बनाम 65% की रही है। और ये स्प्रिंट्स चारों जीती जरूर हांगकांग ने, लेकिन चारों क्वार्टर रहे उनके नाम। 13 स्टील्स, देखिए 13 स्टील्स और 10 असिस्ट। ये दर्शाता है कि जापान के स्टैटिस्टिकली भी अगर उनको एनालाइज किया जाए तो एक श्रेष्ठ टीम के रूप में जापान इस क्वार्टर फाइनल में उभरा है। जाहिर है कि ये टीम एक फाइनल की प्रमुख दावेदार है, और ये हैं उनके कोच शियोता योशिनोरी, जो कि अब हल्का सा मुस्कुराए हैं और हांगकांग चाइना के खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। जाहिर है एक अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा जापानीज कोच की तरफ से, और औपचारिकता भी। पहले क्वार्टर में 7-2 से अपने नाम किया था, दूसरे क्वार्टर में 12-3 केवल एक गोल करने दिया था हांगकांग चाइना को, और उसके बाद अगले क्वार्टर में 10 गोल दागकर एक बड़ा अंतर 22-8, और फिर चौथे क्वार्टर में उन्होंने इसका हिसाब किताब चुकता करके फुल फाइनल फैसला कर दिया। यह है कुछ हाइलाइट्स इस तीसरे क्वार्टर फाइनल का जो अभी घटा है जापान और हांगकांग चाइना के बीच में। ये करारा प्रहार था, वो पेनल्टी हांगकांग की तरफ से जब ली गई थी। नंबर 8 कप्तान मैनचैंग ने वो पेनल्टी ली थी, और अफसोस बाद में उन्होंने एक पेनल्टी मिस भी की थी। अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन जापान ने कोई पेनल्टी मिस नहीं करी। जब जब उनको अवसर मिले, चाहे वो पूल गोल्स के हों या पेनल्टी के, पूरी ताकत के साथ जिस तरह से वो एक स्ट्रॉन्ग एक्सबीटर टीम के तौर पे सामने आई है। मैं पहले भी बात कर रहा था कि मार्शल आर्ट्स उनके जीवन का एक अभिन्न अंग है, उनके लाइफस्टाइल का हिस्सा है, और स्विमिंग जो एक मिक्सचर है यहाँ पे स्विमिंग स्किल्स का और आपकी फिजिकल एजिलिटी का भी पूरा उपयोग। जिस तरह से टॉर्सो को ट्विस्ट करके वो टॉर्क प्रोड्यूस करके अपने शॉट्स में ताकत लेकर आते हैं जापान के खिलाड़ी किशोर। और मैंने देखा है इस पूरे क्वार्टर फाइनल में, चारों क्वार्टर्स में जब जब आक्रमण बनाया है जापान ने, लगभग 10 में से 9 बार, और ये वो शानदार असिस्ट था, बेहतरीन एग्जीक्यूशन था यूको मोरिया की तरफ से, और शोयामा ने उसको नेट के अंदर डाला था। जाहिर है मात्सुनो का 3 गोल भी काफी अहम रहे थे इस योगदान में। एक बड़ा स्कोर 29 बनाम 12, और जैसे जैसे पानी के सरफेस में देकर मारते हैं, उनकी ताकत और तकनीक का जो मिला जुला मिश्रण यहाँ पे देखने को मिलता है। जापान एक सशक्त टीम के तौर पे उभरी है। तीसरे क्वार्टर फाइनल की ये दिलचस्प क्षण, ये कुछ ऐसे चुनिंदा मौके जहां पे जापान का सुपीरियर क्वालिटी गेम देखने को मिला है। 11वीं एशिया एक्वेटिक चैंपियनशिप का आज 10वां दिन है, और डाइविंग के क्वार्टर फाइनल्स आज से शुरू हुए थे। इस तीसरे क्वार्टर फाइनल का रिजल्ट ये रहा आपके सामने। जापान 29 और हांगकांग 12 गोल। कन्विंसिंगली इस मुकाबले को अपने नाम किया है। अभी एक क्वार्टर फाइनल इसके बाद खेला जाना है।